Hello everyone. So today we are going to discuss the last chapter of your book, that is sickness in small business enterprises. ठीक है, केड़ी केड़ी उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करनी पैंदियां ने या की रीजंस ने वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे ने, that we will discuss in this chapter. So what is the first topic is status of sickness of small scale industries in India. Key status है sickness in man is gradual process and does not develop suddenly. कहते जो man ਵਿੱਚ कोई भी प्रॉब्लम आंदी है तो एकदम नहीं आंदी, gradually हौली हौली develop ਹੁੰਦੀ है. Similar is the case with industrial units. कहते यही same case industrial units ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है. Therefore, in common parlance, a sick industry is a one which is not healthy and a healthy unit is a one which earns a reasonable return on capital employed and builds up the reserves after providing reasonable depreciation. So कहते कि अगर आप कहने कि एक पर्सन में कोई बीमारी आ रही है तो एक सिकनेस आ रही है तो एकदम नहीं आती, इट डिवेलप्स ग्रेजुअली टाइम के नाल ਉਹਦੀ बॉडी इदा होंदी रहती है. सो इंडस्ट्री यूनिट्स विच भी सेम केस है. इंडस्ट्रियल केस विच भी रोज़ द टाइम वो प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, रीज़न की हो सकता है कि सिक इंडस्ट्री यही है जो कि हेल्दी नहीं है और हेल्दी इंडस्ट्री वही होंगी जिन्होंने रिटर्न अच्छा मिल रहा है, जिन्होंने प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है अपनी कैपिटल एम्प्लॉय करके. A sick industry unit may be defined as a one where it fails to generate surplus on a continuous basis and depends upon frequent infusion of external funds for its survival. कहते sick industry unit की होंगी है ऐसी इंडस्ट्री, ठीक है, जो फेल हो चुकी है अपना सरप्लस जनरेट करने वास्ते. ठीक है, मतलब उन्हें प्रॉफिट रिसीव नहीं हो रहे कंटिन्यूस बेसिस से और बाहर के फंड्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है ताकि उसका सर्वाइवल हो पाए. According to Reserve Bank of India, a small scale unit should be considered as sick. कहते हैं कदों consider करेंगे if it has at the end of any accounting year accumulated losses equal to or exceeding 50% of its peak net worth in the immediately preceding 5 accounting years. अगर उन्हें पिछले साल 5 साल लॉसेस 50% तो ज़्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स ओकी है कंपनी सिक हो चुकी है. The opportunities in the small scale sector are enormous due to following factors. ठीक है, की opportunities ने ਤੁਹਾਨੂੰ capital ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, extensive promotion ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ support government ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, reservation ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, project profiles ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ funding ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, subsidies ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, machinery procurement only easy है, raw material हो गया, man power training हो गया, सब कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ opportunities ने. ਹੋਰ ਕੀ है, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸਮਾਲ ਸਕਿੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਮਾਲ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗਰੋਥ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ. रिजर्वेशन फॉर एक्सक्लूसिव परचेज बाय गवर्नमेंट होगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गए, ग्रोथ इन डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू दी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ. पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ के नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ डोमेस्टिक मार्केट ਵਿੱਚ भी ग्रोथ हो रही है. इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो रहा है कि आप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बाहर भेज पा रहे हैं. Growth in requirements for ancillary units due to the increase in number of greenfield units compiling up in the large scale sector. So small scale industry sector has performed exceedingly well and enabled our country to achieve a wide measure of industrial growth and diversification. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कुछ डाइवर्सिफाई हो चुका है, बहुत कुछ एक्सपैंड हो चुका है तो ग्रोथ कर चुका है. ਹੁਣ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਸਿਕਨੈਸ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਨੇ. ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੀਨਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ इकोनॉमी में जो रिसेशन आ चुका है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो चुका है, कॉस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाइटल इनपुट्स जिमें पावर वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं आ रही. ठीक है, तो तारा सप्लाई नहीं हो पा रहा रॉ मटीरियल, या फिजिकल इनइक्वालिटीज़ जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह पे करनी पैनियां ने, इनपुट ड्यूटीज़ पे करनी पैनियां ने. अनफेवरेबल चेंज इन इन्वायरमेंट जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰमेंट ਵਿੱਚ गवर्नमेंट ने इदा दी पॉलिसीज़ बनाती ने या बाहर इन्वायरमेंट चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गई है, ये भी थोड़ा कॉज है. एक्सटर्नल इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स हो गया, ठीक है, अनरेस्ट हो गया, ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह थोड़े हाथ में नहीं होंगे, या नैचुरल कैलमिटीज़ दैट इज़ ड्रॉट अर्थक्विक्स फ्लड एक्सेट्रा, ये भी कॉज ऑफ सिकनेस है. सैकेंड कैटेगरी आती है ये इंटरनल कॉजेस. इंटरनल कॉजेस की होंगे ने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जिहदे विच तुहाडा कंट्रोल हो सकता है. ठीक है, इट इंटरनल कॉजेज आर विद इन दी कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री.
It may be an outcome of some internal deficiencies or shortcomings in its various functional areas. वो कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੇ या तो ਤੁਹਾਡੇ कुछ internal indeficiency हो रही, कोई कमी है अंदर, या ਤੁਹਾਡੀ प्रॉपरली शॉर्टकमिंग्स ਹਨ जो कमियां फेस करनियां पै रही ने ਤੁਹਾਡੇ को, मे बी मार्केटिंग टीम अच्छी नहीं काम कर रही या मैनेजमेंट नहीं काम कर रही, ਤੁਹਾਡੀ प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही, फाइनेंस आपका प्रॉपर नहीं है, सो ये चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, तो किहड़े फैक्टर्स हो सकते हैं? लैक ऑफ कंट्रोल ऑन की एरियाज लाइक मैनेजमेंट हो गया, थोड़ा फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग इन्वेंट्री हो गया, ये तो आपको वर्किंग कैपिटल, रोज़ वर्किंग कैपिटल आपको बहुत घट है. एंड इम्प्रॉपर डिमांड फोरकास्ट फॉर द प्रोडक्ट्स, डिमांड प्रॉपर नहीं है. इनएप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, असी टेक्नोलॉजी अच्छी सिलेक्ट नहीं की. या डिफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब ज़्यादा डेट रख लिया, इक्विटी घट रखी है, इक्विटी बहुत ज़्यादा रख ली, डेट आप लिता ही नहीं, दैट मीनस वो भी थोड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा इफेक्टिव नहीं है. ਹੁਣ ਸਿੰਪਟਮਸ ਐਂਡ ਕਿਉਰ ਆਫ ਸਿਕਨੈਸ ਕੀ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕਨੈਸ. ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ? ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਮਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਵॉर ਆ ਗਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਯਰ ਕੰਟਰੋਲ, in which the unit may not be in a position to play an effective role. But where the symptoms are internal, ठीक है, जो कहते हैं internal symptoms ने, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ तो इस सिचुएशन ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. The first signs of sickness generally fall within the purview of daily routine of the unit. ठीक है, तो पहला की है, फर्स्ट साइन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. प्रोडक्शन अगर घट रही है, डिमांड घट रही है, तो क्यों घट रही है, तो साडे डेली यूनिट उपर डेली प्रोडक्शन आप देखांगे. It would therefore be appropriate to first of all enlist the important signals identify sickness at the incipient state. That means कहते starting stage आप देखिए कि सानू ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ इंपॉर्टेंट सिग्नल जी तुहानू दसदे ने कि ਤੁਹਾਡਾ जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिट है, वो सिक हो रहा. एबसेंस और लिटिल मूवमेंट इन स्टॉक, ठीक है, ज़्यादा थोड़ा स्टॉक यूज़ नहीं हो रहा. प्रोडक्शन और सेल्स विटनेसिंग फॉलिंग ट्रेंड, ठीक है, तो प्रोडक्शन सेल्स घट रही है, दैट इज़ वो भी सिकनेस एक सिम्टम है. फ्रीक्वेंट प्रपोजल फॉर एनहांसमेंट इन क्रेडिट लिमिट्स, या क्रेडिट लिमिट्स थोड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ रही ने. परसिस्टेंट इरेगुलरिटी इन कैश क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, कैश क्रेडिट अमाउंट विच इरेगुलरिटी आ रही, ना तुसीं दे पा रहे हो ना तुहानू आ रहा है. परसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट और डिसहार्मनी अमंग द डायरैक्टर्स और पार्टनर्स, ठीक है, जो भी तुहाडी कंपनी विच काम कर रहे हैं वो सारे परसोनल्स विच डिसहार्मनी है, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कर रहे हैं. हाई ड्रॉइंग इन कैश बाय द बोरिंग यूनिट, ठीक है, असी कैश ज़्यादा विड्रॉ करा रहे हैं. कैजुअल रिकनस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म एट शॉर्ट इंटरवल्स, ठीक है, आप रिकनस्टिट्यूशन कर रहे हैं, दैट मीनस कंपनी को कोई ना कोई चेंजिस करी जा रहे हैं कि सानू लग रहा है कि शॉर्ट इंटरवल्स बाद, दैट मीनस वो भी तुहाडे एक सिक होने का सिम्टम है. Next, frequent rejection of all strictures about the goods supplied by buyer, ठीक है, goods कितना उन्हें सप्लाई बायर ने मना करता. Those expenses which can't be written off may go on increasing as they were not so far written off. कहते जो आप expenses जो खर्चे आप रोक सकते हैं ਅਸੀਂ ਉਹ भी नहीं रोक पा रहे. It is also a symptom. लेबर प्रॉब्लम्स हो सकती ने, आप एक्सटर्नल फंड्स उपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, या थोड़े रोज़ ज़्यादा लॉसेस हो रही है, ठीक है, ये थोड़े सिम्टम्स शो करते हैं. सो आप उन्होंने क्योर किमें करना है सिम्टम्स में. स्मॉल सैक्टर विच की पहला स्टेट लैवल आप कमेटी बना ली है फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री. अ स्टेट लैवल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरैक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज विल बी कंस्टिट्यूटेड. इट्स मैंबर्स कंप्राइज किहड़े मैंबर्स होंगे ये बैंक्स विच हो सकते हैं, कोई फाइनैशियल इंस्टीट्यूशनस तो, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हो गए, या इंडस्ट्रीयल एसोसीएशन तो, एक्सपर्ट्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं. The above committee would be empowered with the necessary statutory powers in order to rehabilitate the sick industry so that the approved rehabilitation package may be implemented effectively. So कहते जो ये टीम आप बनावांगे ना, ये देख पान कि हाँ असी की कुछ implement करना है, जो आप effectively पैकेज आप बनावांगे वो आप implement कर पाइए. जो गाइडलाइंस होंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दी, IDB दी, सिडबी दी would be relied upon to identify sickness in sick and small units. कहते इन्हां दी गाइडलाइंस आप जरूर ध्यान च रखांगे ताकि आप उन्होंने देख पाइए कि की प्रॉब्लम्स आ रही हैं. The industry declared sick by state level committee would be eligible to receive leaves and concessions from the banks and financial institutions as per the instructions of RBI. Next comes sickness in medium and large इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो स्मॉल मीडियम ते लार्ज वो केड़ी सिकनेस होंदी है.
A committee would be constituted under the chairmanship of Secretary Industry to explore the possibility and determine remedies for the revival of medium and large scale industries and public sector undertakings. That means ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲੈ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਲੈ ਪਾਈਏ। The rehabilitation package envisaged and envisaged by the BIFR, RIB, different ਤੁਹਾਡੀ banks ਦੇ names ਨੇ, state level, international, interinstitutional committee shall be placed before the committee under the chairmanship of Secretary Industry for consideration and recommendation of the government। सिख इंडस्ट्रीज यही है कि जो इंडस्ट्री which has been registered by the Board for Industrial and Financial Reconstruction. So decision regarding closed industrial units shall be taken by the state level committee constituted under the chairmanship of Secretary Industries Development. That means अगर आप किसी चीज़ ਨੂੰ क्योर करना है, in short अगर आप यही कह सकते हैं कि अगर आप किसी ਨੂੰ क्योर करना है तो आप की करांगे डिफरेंट कमिटीज़ फॉर्म कर देंगे जो कि ਸਟੈਪਸ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਕਿ ਕੀ ਸਿਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।